तो देखते हैं आज आयंस हाउ आयन कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। कैसे आयन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। तो एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आयन, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट anion. Monovalent cation means mono means one, valent means cation means positive charge. means those types of positive charge which carry single, those types of charge which carry single positive charge, or those types of ion which carry single positive charge, that is known as a monovalent cation. Example: sodium ion, ammonium ion, hydrogen ion, potassium ion and silver ion. These all are the example of monovalent cation. Next one, divalent cation. Di means valent means cation means those types of ion which have two positive charge, that is known as the divalent cation. Example: barium, calcium, magnesium, zinc, lead, barium, ferrous and ferrous. It means iron plus 2. Iron plus 2. These all are the example of the divalent cation. Next आता है trivalent cation. Tri means valent means cation means those types of ion which hold two positive charge is known as, three positive charge is known as trivalent cation. Example: ammonium. Iron में ferric, iron में क्या ferric and chromium and chromium ion. These all are example of trivalent cation. To come to the next point, what is the next point? Monovalent anion. anion पढ़ लेते हैं कि anion होते क्या हैं. anion में पढ़ेंगे monovalent anion. Mono means valent means anion means negative charge. those types of ion which hold one negative charge, that is known as the monovalent anion. Example: fluorine, chlorine, bromine, iodine, nitrate, hydroxide and acetate. These all are ions are example of what? Example of monovalent anion. Next one is the divalent anion. Di means valent means anion means those types of ions which hold two negative charge, that is known as the divalent anion. Example: oxide, it means oxygen minus 2, sulfur minus 2, carbonate CO3 minus 2, it means that is, this is known as the carbonate ion. And SO4 minus 2, this one is known as the sulfate, and SO3 minus 2, this one is known as sulfite ion. Sulfite ion. Next one is the trivalent. Tri means valent means anion means तो एक ऐसा anion जिसकी वैलेंसी कितनी है -3, that all are known as the trivalent anion. Example: hydrogen and phosphorus and phosphate ion. These all are example of the trivalent anion. अब हम सीखेंगे how ions combine to each other and form neutral molecule. कैसे ये आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, कंपाइल होते हैं, और कैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. आयन जैसे वैसे आयन, जब कोई चीज आयनिक होती है, आयंस में होती है, तो वो इधर उधर भागती रहती है, एक जगह स्टेबल नहीं रहती है. तो ये मार्कर खुली है तो वहीं रखेंगे तो लग जाएगा. क्या हो जाएगा? लग जाएगा. मतलब ऐसे करेंगे तो लग जाएगा कहीं पे. तो ये चार्ज है, सपोज करो कि एक ऐसा चार्ज है, एक ये भी चार्ज है. दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं, जब आपस में मिक्स होते हैं, मर्ज होते हैं, मिलते हैं, तो लिखना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है. वैलेंसी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. वैसे ही आयंस होते हैं, जब नेगेटिव या पॉजिटिव के फॉर्म में होते हैं तो इधर उधर भागते रहते हैं. उसको रेडिकल्स भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? रेडिकल्स भी बोलते हैं या आयंस भी बोलते हैं. तो ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो फॉर्म होता है कंपाउंड, उसकी वैलेंसी क्या होती है? न्यूट्रल होती है. इट मींस 0 वैलेंट होता है. क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है? 0. तो लेट्स सी एग्जांपल फ्रॉम मोनोवैलेंट cation एंड anion. तो मोनोवैलेंट cation में लेते हैं क्या? सोडियम. और मोनोवैलेंट cation में क्या लेते हैं? नाइट्रेट. तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन कराते हैं तो बनता क्या है? सोडियम नाइट्रेट. केमिकल फार्मूला NaNO
3। नेक्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं? सिल्वर। कौन सा आयन लेते हैं? सिल्वर। और सिल्वर का किससे करा देते हैं? नाइट्रेट से। फॉर्मूला क्या बनेगा? AgNO3। इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। दिस वन इज नोन एज व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट। पूछा जाए सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला AgNO3। तो दूसरा ले लेते हैं, मोनोवैलेंट का डाइवैलेंट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो मोनोवैलेंट में क्या लिए? पोटेशियम। क्या लिए? और डाइवैलेंट में तो दोनों को लिए, तो इसका चार्ज कितना? -2। इस पे चार्ज कितना? तो जब मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, या ट्राइवैलेंट डाइवैलेंट के साथ जुड़ता है, या डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट के साथ जुड़ता है, तो उसमें जो नंबर्स होती हैं वो ट्राई से डाई में आ जाता है, डाई से ट्राई में चला जाता है, या मोनो से ट्राई में आता है, ट्राई से मोनो में चला जाता है। तो इस प्रकार की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ऑक्सीजन के ऊपर कितने माइनस चार्ज? -2। तो इसका -2 किसके साथ आ जाएगा? पोटेशियम के साथ। तो इसका 1 किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ चला गया। जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी K2O, और नेम क्या होगा? पोटेशियम ऑक्साइड। उसी तरह से ले लेते हैं मैग्नीशियम आयन को। मैग्नीशियम आयन का रिएक्शन किससे करवा देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन से कॉम्बिनेशन इसका करा देते हैं, और देखते हैं जो बनता है फार्मूला MgOH का क्या बनता है? क्योंकि यहाँ का 2 ये नंबर किसके साथ चला जाता है? हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाता है, और बनता क्या फार्मूला MgOH का होल स्क्वायर। उसी तरह से बेरियम कर लेते हैं। बेरियम का रिएक्शन किससे करवा देते हैं? के साथ NO3 के साथ, वहां पे भी फार्मूला बन जाता है। और यहाँ मैग्नीशियम को ले लेते हैं, कार्बोनेट के साथ करवा देते हैं। मैग्नीशियम कितने चार्ज? +2। कितने चार्ज? +2। और कार्बोनेट पे कितने चार्ज? -2। तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज चाहिए? आयन या नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें? नहीं होगा। तो फार्मूला सीधा क्या बनेगा? MgCO3। यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला हुआ MgCO3। और वही कैल्शियम को ऑक्सीजन से करा दें, तो इस पे भी कितने चार्ज? +2। इस पे कितने चार्ज? -2। रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? CO। नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। वही +3 वाले को लेकर रिएक्शन कराते हैं। जैसे एल्युमिनियम को ले लें, नाइट्रोजन के साथ कराते हैं, तो AlN बनेगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक। तो वही हम क्या कर लें? रिएक्शन करा देते हैं लीड का एसीटेट के साथ, यानी कि डाइवैलेंट कैटायन का मोनोवैलेंट एनायन के साथ रिएक्शन करा दें, तो इस पे कितने चार्ज? इस पे कितने चार्ज? तो इसका 2 कहां जाएगा? एसीटेट के साथ, और इसका 1 कहां जाएगा? लीड के साथ। और फार्मूला बनेगा CH3COOH-Pb। समझ में आया? नेक्स्ट वन, पोटेशियम का रिएक्शन। वी see the potassium reaction of potassium with the acetate and potassium, and the formula will be what? CH3COO. Okay, this will be known as the potassium acetate। इसको पोटेशियम एसीटेट के नाम से जाना जाता है। और ट्राइवैलेंट को लेते हैं, मोनोवैलेंट के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो ट्राइवैलेंट में क्या है? एल्युमिनियम। ट्राइवैलेंट में क्या? एल्युमिनियम। और ट्राइवैलेंट एल्युमिनियम का मोनोवैलेंट क्लोरीन के साथ क्या करा देते हैं? क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो इसका 3 किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ। इसका 1 एल्युमिनियम के साथ। फार्मूला क्या बनेगा? AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड। वही आयरन ट्राइवैलेंट है। आयरन ट्राइवैलेंट यानी कि फेरिक। आयरन ट्राइवैलेंट का मतलब क्या? फेरिक। इस फेरिक को ले लें मोनोवैलेंट हाइड्रोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन कराएं, तो इसका 3 कहां जाएगा? हाइड्रोक्साइड के साथ। फार्मूला क्या बनेगा? FeOH। और इसका नाम क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। और वही यदि Fe+2 और OH-1 को ले लें, तो फार्मूला क्या बनेगा? FeOH और +2 का नाम क्या है? क्या नाम है? फेरस। तो क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? फेरस हाइड्रोक्साइड। तो उसी तरह से एल्युमिनियम को ले लेते हैं। एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट कैटायन है, और इसको डाइवैलेंट एनायन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, तो ऑक्सीजन का 2 कहां